What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 6th of July and finally the markets are showing some signs of recovery. So 24,000 के around almost 2 हफ्ते markets ने consolidate किया and finally on Friday the markets gapped up above that particular resistance and of course थोड़ा बहुत closing weak था but the markets are holding those levels firmly. So Friday के दिन FIIs were net buyers and DIIs were net sellers and today the markets gapped up and within the first 30 minutes itself the markets not only tested that yesterday's high but also it broke out of it. 24,380 जो था वो Friday का हाई था. 24,380 ब्रेक करने के बाद मार्केट 70 to 80 पॉइंट्स और ऊपर ट्रैवल किया and towards somewhere around 2 o'clock the market saw some amount of profit booking and markets में थोड़ा बहुत dip आया exactly around that price action point and exactly at 3 o'clock again the bullishness is continuing and finally markets day high के आसपास ही close दे रहा है. India VIX is again slow and steadily going down and अब से India VIX उतनी तेज से नहीं गिरेगी जितनी तेज से लास्ट 2-3 हफ्ते में गिरा है. So now if India VIX has to fall below 11 then the markets need to start trading firmly and decisively about 25,000 levels and 26,000 के आसपास जब markets आएगा most probably then we might see India VIX start trading somewhere around 10 and 11 and global markets pretty much lull and weekend no news whatsoever so it feels like some amount of sanity is back in the markets and straddle जो 170 रुपीस पे जो क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन वो ओपन होता है आज 155 पे. हमने डिस्कस किए थे कि 150 एंड 160 के बीच ओपन होने वाला था एंड straddle which had closed somewhere around 176 on Friday evening opens at somewhere around 155. We discussed this and there was a linear crash and finally straddle close हो रहा है 115 के आसपास क्लोज हो रहा है which means tomorrow most probably double digit straddle open मिलने वाला है and जिस हिसाब से प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है most probably कल 24,500 might be acting as some sort of a magnet level and कल का जो एक्सपायरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है because the previous expiry was quite docile kind of an expiry. कोई भी मूवमेंट नहीं थी, ज़्यादा volatility नहीं थी. So tomorrow I'm expecting slightly higher volatility, not like the ones we witnessed on the monthly expiries a couple of weeks back but slightly higher than द लास्ट एक्सपायरी. सो कल के एक्सपायरी में हमारा पोजीशंस क्या होना चाहिए, ट्रेड स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए, जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स है वो कहाँ पे बने हुए हैं एंड कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है, सारे डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट टू द टर्मिनल. ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन फ्राइडे के दिन ब्रेक हो गया था. ऑफकोर्स क्लोज इतना स्ट्रांग नहीं था बट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे का जो गैप अप हुआ था उस गैप अप में द DIIs आर द वंस हु सोल्ड एंड FIIs एक्चुअली बॉट एंड आज का जो प्राइस एक्शन है अगेन मोस्ट प्रोबेबली FIIs वुड बी बायर्स इन माय ओपिनियन एंड मार्केट्स ने काफ़ी क्लियरली ब्रेकआउट दे चुका है. तो अभी जो अगला रेजिस्टेंस है दिस इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड इसके ऊपर अगर जैसे मार्केट क्लोज दे देता है तो देन मार्केट शुड इजीली क्रूज अबाउट 25,000 लेवल्स एंड कल का जो एक्सपायरी है 24,500 के अराउंड होने वाला है एंड 24,500 का जो कॉल्स है बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट किए रहेंगे बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन बार बना हुआ है, यहाँ पे एक सप्लाई कैंडल बना हुआ है. तो इस सप्लाई कैंडल जो है 24,500 के आसपास ही है. तो मोस्ट प्रॉबली फ्राइडे के दिन अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव शॉर्टेड दीज 24,500 कॉल्स एंड वो लोग 24,500 तक भी उन ऑप्शंस को होल्ड करेंगे बट जैसे मार्केट 24,500 को ब्रीच करना शुरू करता है वी कैन सी सम अमाउंट ऑफ कमोशन. तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आज का अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो यस द मार्केट्स ओपनड decent amount of gap up and within the first 5 minutes itself markets almost कल का जो हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा था and within the first 30 minutes itself the markets broke out of the yesterday's high and generally मैं consistently बोलता रहता हूँ कि अगर मार्केट्स को थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है तो यूजुअली मार्केट्स को जो लोकल रेजिस्टेंसेस एंड लोकल सीलिंग्स जो रहता है उसको 10 o'clock के पहले ही तोड़ना पड़ता है बिकॉज मार्केट्स ऐसे नहीं करता है कि पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आता है तो येस देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली बट जनरली लोअर वॉलेटिलिटी एनवायरमेंट्स में जब इंडिया विक्स 12 के अंदर 10 के आसपास जब ट्रेड करता रहता है प्राइस एक्शन थोड़ा काफ़ी अच्छे से फॉलो होता है एंड जनरली मार्केट्स को अगर ट्रैवल करना होता है ट्रेंड करना होता है तो 10 o'clock 10:15 के पहले मार्केट्स को एक लोकल रेजिस्टेंस जो बना हुआ रहता है या लोकल टॉप जो बना हुआ रहता है उसको ब्रेकआउट देना होता है. तो 10 o'clock के पहले ही मार्केट्स ने ब्रेकआउट दे दिया एंड उसके बाद मार्केट्स अनदर 70-80 पॉइंट्स ट्रैवल किया. यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया एंड यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 2 o'clock से जो थोड़ा बहुत सेलिंग आई 250 के आसपास मार्केट्स एग्जैक्टली उसी लेवल पे ये सेलिंग को ऑब्जर्व करके
3 o'clock का जो कैंडल है इट अगेन अ बुलिश कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट्स 3 o'clock के आसपास एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया हुआ है तो अगले दिन मार्केट्स जनरली काफ़ी अच्छा गैप अप के साथ ओपन हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली tomorrow, today's high will be taken out and most probably the expected open will be somewhere around 24,470, 24,480 levels, and which makes the markets का range somewhere between 24,600 and 24,400। जो 24,500 को सेंटर करके हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स हमारा जो साइजिंग है वो काफ़ी छोटा रहना चाहिए बिकॉज लास्ट एक्सपायरी जो है मार्केट्स काफ़ी लीनियर काइंड ऑफ अ डीके दिया है, काफ़ी ईजिली ऑप्शन सेलर्स को पैसे दिया है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट टुमारोज एक्सपायरी इज गोना बी वे टू वोलेटाइल, बट आपको मार्केट्स पोजीशन साइज इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली मौका देगा। मतलब ये मत सोचो कि 9:30 के आसपास आपका पोजीशन साइज सिर्फ 10% या 15% पे ही है एंड कंटिन्यूसली आपके आंख के सामने प्रीमियम्स मेल्ट हो रहा है, प्रीमियम्स डीके हो रहा है, टीटा डीके मिल रहा है। डोंट गेट फोमोड इन बिकॉज 12 o'clock 1 o'clock के आसपास भी मार्केट्स आपको एक मौका देगा, एक झटका देगा, इधर ऑन दी लोअर साइड और ऑन दी अपर साइड। आप उस झटके को यूज करके एक मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड आप कल भी इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ थोड़ा बहुत मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखूं तो कैन नोटिस दैट 24,600 हैज बीन अ सप्लाई लेवल। यहाँ पे दिस विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मैक्सिमा फॉर टुमारो। तो मोस्ट प्रोबेबली 24,600 के आसपास अगर मार्केट आएगा इट वुड ऑफर अ डिसेंट probability as well as the risk reward to short at the money calls। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 24,500 का कॉल शॉर्ट करो, इन द मनी कॉल शॉर्ट करो, बिकॉज मार्केट्स में इतना मूव ही है नहीं। बिकॉज यू कैन नोटिस दैट लो से हाई ही मार्केट 100 पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट अगर मार्केट्स 24,600 के आसपास आता है तो वहाँ से मार्केट फिर से 24,500 के नीचे आएगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गोना हैपन, बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है। सो जब मार्केट 24,600 के आसपास आएगा ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शॉर्ट द कॉल्स। मैं एट द मनी शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इफ आई एम फीलिंग अ लिटिल मोर एडवेंचरस प्रोबेबली वन स्ट्राइक आईटीएम में शॉर्ट करना पसंद करूंगा, एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट्स माइट कम समवेयर अराउंड 24,550 एंड एक्सपायर हियर। ठीक है, तो अगर मार्केट 24,500 के आसपास ओपन करता है एंड इफ एट ऑल वी गेट अ पुल बैक नियर 24,450, तो यहां पे अगर पुल बैक मिलता है तो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गो लॉन्ग। यहां पे मैं स्ट्रक्चर क्या यूज करूंगा, प्रोबेबली आईड यूज अ बुल पुट स्प्रेड। मैं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड यूज करूंगा एंड अगर आप ओटीएम ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं तो देन आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे 24 जब मार्केट 24,450 के आसपास आएगा तो देन 24,400 का पुट ऑप्शन ही आपको मिलेगा 20 रुपीज़ के आसपास, 25 रुपीज़ के आसपास, एंड दिस हैज़ अ पोटेंशियल टू get doubled or tripled very easily। So that is why कल का जो एक्सपायरी है it will be the first expiry where we are going to see a sub 100 रुपीज़ का straddle open। तो कल का जो एक्सपायरी है, कल एक एक्सपायरी थोड़ा लोअर पोजीशन साइज से ट्रेड करो। मैं बता रहा था कि लेकिन यस देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट्स माइट बी वेरी काम एंड ऑप्शन सेलर्स को मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली पैसा देगा, बट वी वांट द मार्केट्स टू प्रूव फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स दैट देयर वोंट बी एनी सरप्राइजेस। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मार्केट्स रेंज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होगा, बट सडनली एक बार वापस रेंज एक्सपैंड हो गया था। 300-400 पॉइंट का जो डे रेंजेस है वो वापस बनाना चालू हो गया था। तो दैट इज़ वाई वी डोंट वांट एनी सरप्राइजेस बिकॉज मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा चॉपी है एंड मार्केट्स में काफ़ी अच्छा न्यूज़ आने के बाद एंड वर्स्ट खत्म होने के बावजूद भी मार्केट्स ऐसा अच्छे से क्रूज नहीं कर रहा है। इफ़ यू नोटिस, ठीक है, ये वॉर स्टार्ट होने से पहले मार्केट्स के पास एक बैड न्यूज़ जो था वो बैड न्यूज़ था, वो टैरिफ के तौर पे बैड न्यूज़ था। एंड जब टैरिफ के लिए मार्केट्स नीचे आया, जब वो टैरिफ हटाया गया और ट्रेड डील हो गया, इमीडिएटली मार्केट्स 1500 पॉइंट का एक गैप अप खुला था। बट दिस टाइम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर एंड द डील इज अबाउट टू बी साइंड, वी आर नोवेयर नियर द ऑल टाइम हाई। तो मेरे को चाहिए मार्केट्स 24,700 24,800 के ऊपर एक डिसाइसिव कैंडल दे एंड उसके बाद भी एक बार एक फॉलोअप कैंडल मिले, तो उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग आवर पोजीशंस लॉन्ग टर्म, स्पेशली इन्वेस्टिंग साइड पे टुवर्ड्स द अपसाइड। तो कल के लिए हमने 3 सिनेरियोस डिस्कस कर चुके हैं, बट चौथा सिनेरियो ये है कि अगर एक सरप्राइज गैप डाउन आता है, व्हेन आई से गैप डाउन, दैट गैप डाउन नीड्स टू बी बिलो दिस स्विंग। इस स्विंग के नीचे थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं, इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो देन we can actually take some sort of a mean reversion trade based on the first 5 minute का कैंडल। अगेन सेम प्रिंसिपल है, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का जो हाई ब्रीच होता है तो देन विल कम एंड शॉर्ट एट द मनी पुट ऑप्शन इटसेल्फ, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैंडल का जो लो है इट विल नॉट बी मोर देन द एट द मनी पुट ऑप्शन का प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से मार्केट ओपन समवेयर अराउंड 24,350 लेवल्स एंड फर्स्ट कैंडल है वो 30 पॉइंट्स का कैंडल बन गया,
ठीक है, 24,380 के आसपास। नाउ 24,380 जैसे मार्केट क्रॉस करेगा, हम 24,400 का जो पुट ऑप्शन है उसको शॉर्ट कर देंगे। 24,400 का पुट ऑप्शन कितने रुपए पे मिलेगा? Let's say that the straddle opens at somewhere around 90 rupees. So call option 45 पे रहेगा, put option 45 पे रहेगा, and since there is a 25 point of intrinsic value, most probably somewhere around 35 plus 25, that is around 55 rupees पे आपको 24,400 का जो puts है वो मिलने वाला है। and ये जो stop loss है वो आपका 30 point का रहेगा, right? So ये 30 point का जो stop loss लेके आपको 55 point का कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। and it's not just a standalone trade, ऐसा नहीं कि हम लोग put short करके हम बंद कर देंगे। let's say मार्केट यहाँ पे आएगा 24,460 के आसपास आएगा, देन वी कैन इवन शॉर्ट 24,500 का कॉल ऑप्शन विथ 24,500 स्पॉट एज द स्टॉप लॉस। तो तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन को खा के आए एंड उसके बाद कॉल ऑप्शंस का थोड़ा बहुत एलिवेटेड प्रीमियम्स मिले, वहाँ पे कॉल ऑप्शंस को भी हम शॉर्ट करके इसको विल कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैंगल। ठीक है, अगेन ratios, I'm not very big fan of ratios in lower VIX regimes because क्या है, मार्केट्स में जनरली लोअर VIX regimes में मार्केट्स थोड़ा करके ग्राइंड करता है एंड ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करता है। एंड आपको रेशियोज में अगर पैसे बनाना हो तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, इन द मनी एंड एट द मनी काइंड ऑफ रेशियोज बनाना पड़ेगा, ITM एंड ATM काइंड ऑफ रेशियोज बनाना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ATM एंड OTM काइंड ऑफ रेशियोज बनाना पड़ेगा, जो चीज़ थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है एंड वो जो पैसा है ऑलमोस्ट 230 के बाद ही आपको देना शुरू करेगा अगर आपका ज्यादा डेबिट नहीं है तो। ठीक है, दैट्स व्हाई अगेन टिल सम वोलेटिलिटी इज सीन, डोंट ट्रेड रेशियोज बिकॉज रेशियोज में ज़्यादा पैसा बनने वाला नहीं है। ट्राई टू ट्रेड स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स इटसेल्फ और डायरेक्शनल ट्रेड्स जैसे हम बता रहे हैं, लाइक वैसे डायरेक्शनल ट्रेड्स करके उस डायरेक्शनल ट्रेड को जब प्रॉफिट में आएगा उसको हेज करने के लिए हम लोग वापस ऑपोजिट साइड भी हम लोग शॉर्ट करके वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एंड मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स। ठीक है, दैट इज मोटा मोटी माई एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारोज एक्सपायरी। एंड अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, लेट्स से 24,400 के आसपास ओपन होके 24,460 लेवल को अगर ब्रीच कर देता है तो देन आई वुड इवन want to short 24,500 का पुट ऑप्शन एंड वेट फॉर सम स्पाइक एंड 24,520 530 के आसपास अगर मार्केट आता है तो देन वहां पे मैं कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट करके 24,500 पे आई वांट टू एक्सपायर द मार्केट्स। तो चारों सिनेरियोज के लिए प्ले किए हैं, बट अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से 24,550 24,560 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो देन इस गैप अप को यूज करके हम शॉर्ट करेंगे 24,600 का कॉल ऑप्शन विथ 24,600 स्पॉट एज द स्टॉप लॉस। यस, रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहेगा बट जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे फेवर में रहेगा एंड वी विल बी शॉर्टिंग द कॉल्स एट क्वाइट एन एलिवेटेड प्रीमियम बिकॉज जैसे मार्केट 24,500 के ऊपर ओपन होता है तो देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ कमोशन इन द कॉल राइटर्स। वो लोग थोड़ा भटकेंगे, ओवरनाइट पोजीशन से थोड़ा बहुत रोल ओवर होना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट 2-3 मिनट में आना शुरू करेंगे एंड वी विल गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स ऑन 24,600 कॉल्स एंड 24,600 being the supply zone we can short those 24,600 calls with 24,600 as some sort of a stop loss on spot level। अगर ये ब्रीच होना शुरू करता है then we can add 24,600 का put and convert it into some sort of a straddle। ठीक है, so these are my scenarios for tomorrow guys and as I said कल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट्स डेल्टा मूव डेफिनेटली करने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको साइड में बिठा के मार्केट्स पूरा लीनियरली डीके, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो डेल्टा मूव 11 o'clock के आसपास नहीं आएगा तो कम से कम एक बजे से लेके 3 बजे के बीच में तो एक बार डेल्टा मूव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.